السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، امید کرتا ہوں خدا کی ذات سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی تیاری کو زور و شور کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ میں جنید رضا آپ تمام ساتھیوں کا اپنے یوٹیوب چینل آن لائن اردو 99 پر خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ ساتھیوں، اردو زبان دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اردو زبان کا شمار دنیا کے مقبول ترین زبانوں میں ہوتا ہے۔ اردو بہت ہی میٹھی زبان ہے ساتھیوں، بہت ہی میٹھی زبان ہے۔ آج کے کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام ساتھیوں کی خدمت میں داغ دہلوی صاحب کا ایک شعر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے، کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ ساتھیوں، اگر ہم اردو زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ہی سہل کام ہے، کوئی بھاری بھرکم کام نہیں ہے کہ ہم اردو کو نہیں سیکھ پائیں گے۔ ساتھیوں، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم اردو زبان کو بولنا سیکھ جائیں گے، لکھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ ساتھیوں دنیا کے مقبول ترین زبانوں میں اردو کو شمار کیا جاتا ہے۔ اردو بہت ہی میٹھی زبان ہے ساتھیوں، جس نے بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے، اپنانے کی کوشش کی ہے، یقین کیجئے ساتھیوں، آپ یقین مانیے اردو کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ اردو دنیا کے مقبول ترین زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے، آپ یاد رکھیں گے۔ ساتھیوں، آج کی اس قواعد کی کلاس میں آپ کو اردو قواعد سے متعلق چند باتیں بتانے والا ہوں۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پچھلے والی کلاس میں بتایا تھا کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ساتھیوں، علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج۔ علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج۔ یاد رکھیں گے آپ، اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی کلاس میں بتایا تھا۔ ساتھیوں، آپ پھر سے سن لیں، اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج۔ یاد رکھیں گے آپ، اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج۔ ساتھیوں، اردو قواعد کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یاد رکھیں گے آپ، دنیا کی کوئی بھی زبان کیوں نہ ہو، نیپالی ہو، پنجابی ہو، بنگلہ ہو، اردو ہو، فارسی ہو کہ ہندی ہو یا سنسکرت ہو، کوئی بھی زبان ہو ساتھیوں، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو صحیح طریقہ سے پڑھنے کے لیے، صحیح طریقہ سے بولنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اسے ہی اردو قواعد کہیں گے۔ ساتھیوں، اردو کے بھی کچھ اصول ہیں، کوئی بھی زبان ہو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ نیم ہوتے ہیں، کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں جس سے ہم اردو قواعد کہیں گے۔ اگر ہم اردو کو سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اردو کے کچھ رول ہیں، کچھ نیم ہیں، کچھ قاعدے اور قانون ہیں، اسے ساتھیوں ہم اردو قواعد کہیں گے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، آپ یاد رکھیں گے: علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج۔ اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو آپ کہیں گے 5 حصوں میں اردو قواعد کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ کون کون؟ علم حجہ، علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم عروج۔ ساتھیوں، یاد رکھیں گے آپ، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ساتھیوں، زبان کو صحیح طریقہ سے بولنے کے لیے، صحیح طریقہ سے پڑھنے کے لیے، صحیح طریقہ سے لکھنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں جسے ہم قواعد کہتے ہیں، یاد رکھیں گے آپ، قاعدہ کا جمع قواعد ہے، لفظ قاعدہ کا جمع قواعد ہوتا ہے، یاد رکھیں گے ساتھیوں۔ اسی طریقے سے لفظ فائدہ کا جمع فوائد ہوتا ہے۔ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے لفظ کسے کہیں گے؟ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ کوئی اگر آپ سے پوچھے لفظ کسے کہتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھے لفظ کسے کہتے ہیں، تب ساتھیوں آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، یاد رکھیں گے آپ، آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ لفظ دو طریقے کے ہوتے ہیں، معنی دار اور غیر معنی دار۔ ساتھیوں، آپ یاد رکھیں گے، لفظ دو طریقے کے ہوتے ہیں، معنی دار اور غیر معنی دار۔ آپ یاد رکھیں گے، آدمی کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسے قلم، دعوت، کتاب،
टोपी, कुर्ता, बकरी, कुर्सी, मेज वगैरह। साथियों ये अल्फाज हैं। साथियों आप याद रखेंगे आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लफ्ज कहते हैं। साथियों आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। जैसे कलम, दवात, कापी, टोपी, किताब, बकरी, गर्मी। जैसे आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। जैसे कलम, दवात, किताब, टोपी, कुर्ता, बकरी, कुर्सी, मेज। साथियों मेज, टेबल, गाय, भैंस, पटना, आगरा, मुंबई, दिल्ली वगैरह। साथियों ये लफ्ज हैं, याद रखेंगे आप। आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज साथियों याद रखेंगे आप। जैसे कलम, दवात, किताब, टोपी, कुर्ता, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी, गधा, शेर, ऊंट। ये सारे लफ्ज हैं साथियों। ये सारे लफ्ज है साथियों। ये सारे लफ्ज की मिसाल है। आप याद रखेंगे कि आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से दो तरीके की आवाज निकलती है साथियों। कितने तरीके के? दो तरीके के। एक तो मानीदार होते हैं जिससे कोई बात हमें समझ में आती है। दूसरा गैर मानीदार। दूसरा गैर मानीदार। आप याद रखेंगे उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। याद रखेंगे आप। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज। साथियों ये उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। साथियों जैसा कि मैंने आपको इससे पिछले वाले क्लास में भी बताया था उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कौन कौन? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज। साथियों आज की क्लास के अंदर मैं आपको लफ्ज के बारे में बता रहा हूँ। लफ्ज किसे कहेंगे? लफ्ज की तारीफ क्या होगी? साथियों अगर कोई आपसे पूछे लफ्ज किसे कहेंगे तब आपका जवाब होना चाहिए इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। साथियों खा वो कोई भी लफ्ज हो। जैसे आपको मैं बताऊं कुर्सी, टेबल, पलंग, अलना, किताब, मेज, कंप्यूटर, मोबाइल। साथियों ये सारे लफ्ज हैं। ये सारे लफ्ज की मिसाल हैं। कलम, दवात, किताब, टोपी, बकरी, गधा, गाय, भैंस, ऊंट, शेर, भालू वगैरह। ये साथियों ये सारे लफ्ज हैं। अब याद रखेंगे आप लफ्ज 2 तरीके के होते हैं। आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। जैसे कलम, दवात, किताब, टोपी, कुर्ता, बकरी, कुर्सी, अलना, टेबल, पलंग, चौकी वगैरह। साथियों ये सारे लफ्ज हैं। लफ्ज 2 तरीके के होते हैं। लफ्ज 2 तरीके के होते हैं। एक मानीदार, दूसरा गैर मानीदार। एक मानीदार, दूसरा गैर मानीदार। साथियों मानीदार को मौजू कहते हैं, मीनिंगफुल जिसको अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है। इसे हम हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं। साथियों आप याद रखेंगे मौजू को हिंदी में हम सार्थक शब्द कहते हैं और मुहम्मल को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। लफ्ज 2 तरीके के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे लफ्ज कितने तरीके के होते हैं? लफ्ज 2 तरीके के होते हैं। एक मौजू, दूसरा मुहम्मल। साथियों मौजू वो लफ्ज होता है जिसका मानी होता है। लफ्ज 2 तरह के होते हैं। लफ्ज 2 तरह के होते हैं। मौजू वो अल्फाज जो मानीदार हों साथियों मौजू कहलाते हैं। वो अल्फाज जो मानीदार हों मौजू कहलाता है। आप याद रखेंगे लफ्ज का जमा अल्फाज होता है। लफ्ज का जमा अल्फाज होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया लफ्ज कायदा के जमा कवायद होता है। लफ्ज कायदा की जमा कवायद होता है। इसी तरीके से साथियों लफ्ज अल्फाज लफ्ज की जमा है। लफ्ज अल्फाज लफ्ज की जमा है। इसे याद रखेंगे आप। वह अल्फाज जो मानीदार हों मौजू कहलाते हैं। जैसे चाय, पानी, रिकाब, सेब वगैरह। साथियों इनके मानी हैं। जैसे चाय, पानी, रिकाब, सेब वगैरह। साथियों इनके मानी हैं, ये मानीदार हैं। याद रखेंगे आप मौजू किसे कहेंगे जिसको अंग्रेजी के अंदर मीनिंगफुल कहा जाता है। आप याद रखेंगे लफ्ज मौजू को हिंदी में सार्थक शब्द कहा जाता है और इसे हम हिंदी में साथियों इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। और अंग्रेजी के अंदर मीनिंगफुल कहा जाता है। मौजू को हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं और अंग्रेजी के अंदर मीनिंगफुल कहा जाता है। वह अल्फाज जो बामानी हो यानी मानीदार हो उसे हम मौजू कहेंगे। साथियों आप याद रखेंगे सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ हो, जिससे कोई बात समझ में आए उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं यानी मौजू कहते हैं। वह अल्फाज जो बामानी हो मानीदार हो मौजू कहलाते हैं।
जैसे चाय, पानी, रिकाब, सेब वगैरह। साथियों इनके मानी हैं, इनसे हम कुछ न कुछ समझते हैं। साथियों आप याद रखेंगे, मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है। मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है, इसे आप हरगिज नहीं भूलेंगे। मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में मीनिंगफुल कहते हैं और हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं। मुहम्मल किसे कहेंगे? वह अल्फाज जो बेमानी हो, बेमतलब हो, मुहम्मल कहलाते हैं। साथियों बेमानीदार लफ्ज को, जिसका कोई मानी ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसे अल्फाज को मुहम्मल कहते हैं। मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है। मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है, जबकि गैर मानीदार लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। जैसे साथियों चाय, हम लोग आम जुबान में बोलते हैं चाय वाय लाओ रे, चाय वाय लाओ, चाय के साथ वाय लगाते हैं, जिसका कोई मानी नहीं है, जिसका उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है। पानी वानी, साथियों ये वानी, वानी का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई लफ्ज नहीं है। साथियों रिकाब वेकाब, रिकाब वेकाब, वेकाब का कोई मानी नहीं है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे सेब वेब, सेब वेब, वेब का कोई मानी नहीं है। साथियों ये गैर मानीदार शब्द हैं। गैर मानीदार अल्फाज को मुहम्मल कहा जाता है। साथियों इसे हम हिंदी में निरर्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं हो, जिनका कोई अर्थ नहीं हो। साथियों हम आम जुबान में बोलते हैं। साथियों हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जिसका उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है। साथियों जिसका कोई मानी नहीं होता, फिर भी हम बोलते हैं। जैसे दवा हुआ, दवा हुआ, दवा के साथ हुआ लगा देते हैं। रोटी वोटी, साथियों रोटी का जो मानी है, रोटी मौजू हो जाता है, उसके साथ वोटी लगा देते हैं। रोटी वोटी, वोटी का मानी नहीं है। कपड़ा वपड़ा, कपड़ा वपड़ा, साथियों कपड़ा का जो मानी है, कपड़ा से तो बात समझ में आती है, वपड़ा से कोई बात समझ में नहीं आती है। इसी तरीके से किताब उताब, साथियों किताब से तो बात मुकम्मल समझ में आ रही है, किताब से तो बात समझ में आ रही है, लेकिन उताब से कोई बात समझ में नहीं आई। रोशनी उशनी, दुनिया उनिया। इसी तरीके से आप याद रखेंगे मौजू किसे कहेंगे? वह अल्फाज जो बामानी हो, मौजू कहलाते हैं। मौजू किसे कहेंगे? वह अल्फाज जो बामानी हो, जो मानीदार हो, मौजू कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में मीनिंगफुल कहा जाता है। साथियों आप याद रखेंगे मौजू को अंग्रेजी के अंदर मीनिंगफुल कहा जाता है और इसे हम हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे चाय, पानी, रिकाब, सेब वगैरह। साथियों इनके मानी है, इसे हम मौजू कहेंगे। इसी तरीके से मुहम्मल शब्द किसे कहते हैं? मुहम्मल लफ्ज किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेजी के अंदर मीनिंगलेस कहा जाता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। साथियों ये मीनिंगलेस है। जिस तरीके से हम बोलते हैं घटिया इंसान को कैरेक्टरलेस, कैरेक्टरलेस, उसी तरीके से मीनिंगलेस है ये वर्ड। साथियों आप याद रखेंगे मुहम्मल किसे कहेंगे? वो अल्फाज जो बेमानी हो, बेमतलब हो, मुहम्मल कहलाते हैं। जैसे चाय के साथ हम लोग क्या बोलते हैं? चाय के साथ वाय, चाय वाय। पानी वानी, पानी वानी। साथियों ये वाय जो है ये मुहम्मल है, वानी जो है ये मुहम्मल है। इसी तरीके से रिकाब वेकाब, रिकाब वेकाब, वेकाब जो है मुहम्मल है। सेब वेब, सेब वेब। साथियों सेब का तो मानी है, लेकिन वेब का कोई मानी नहीं है, ये मुहम्मल है। आप याद रखेंगे गैर मानीदार लफ्ज को, गैर मानीदार लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है, जिसका कोई मानी नहीं हो। इसे हम हिंदी में निरर्थक शब्द कहते हैं। साथियों आप याद रखेंगे उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूद। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूद। साथियों इसी तरीके से मैंने आपको लफ्ज की तारीफ बताया। लफ्ज किसे कहेंगे? साथियों इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है, आदमी के मुंह से जो भी आवाज निकलती है, साथियों चाहे वो मानीदार हो या गैर मानीदार हो, उसे हम लफ्ज कहते हैं। आदमी के मुंह से जो भी आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज 2 तरह के होते हैं साथियों, लफ्ज 2 तरह के होते हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू मुहम्मल। मौजू कहते हैं वह अल्फाज, मौजू कहते हैं वो अल्फाज जो बामानी हो, मानीदार हो, मौजू कहलाते हैं। जैसे चाय, पानी, रिकाब, सेब वगैरह इनके मानी है, ये मौजू कहलाते हैं। साथियों मौजू को अंग्रेजी में मीनिंगफुल कहा जाता है, मौजू को अंग्रेजी में मीनिंगफुल कहा जाता है और इसे हम हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं। इसी तरीके से मुहम्मल वह अल्फाज जो बेमानी हो, जिसका कोई मतलब ना हो, साथियों मुहम्मल कहलाते हैं। जैसे वाय, वानी, विकाब, विकाब, रिकाब हो गए। जैसे वाय, वानी, विकाब, वेब वगैरह। साथियों ये गैर मानीदार लफ्ज हैं, इसे हम मुहम्मल कहेंगे। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ खुदा की दाद से कि आप मौजू और मुहम्मल के बारे में बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों मौजू किसे कहेंगे? वो अल्फाज जिसके मानी हो। साथियों मानीदार अल्फाज को मौजू कहा जाता है, मानीदार अल्फाज को मौजू कहा जाता है।
मानीदार अल्फाज को मौजू कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी के अंदर मीनिंगफुल कहते हैं। इसे हम हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं। हिंदी के अंदर सार्थक शब्द कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में मौजू कहते हैं। साथ ही इसका एक मानी होता है, जैसे कलम, किताब, कपड़ा, दुकान, मकान, साथियों पटना, आगरा, मुंबई वगैरह। साथियों ये मौजू है। और मुहम्मल के बारे में मैं बताऊं, साथियों मुहम्मल गैर मानीदार लफ्ज को, जिसके कोई मानी नहीं हो, साथियों बेमानीदार लफ्ज को। साथियों अब मैं आपको मुहम्मल के बारे में फिर से बताता हूं। मुहम्मल किसे कहेंगे? वह अल्फाज जिसके मानी नहीं हो, बेमानीदार लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में मीनिंगलेस कहते हैं। मीनिंगलेस साथियों जिसका कोई मीनिंग ना हो। साथियों इसे हम हिंदी में निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे चाय के साथ हम लोग बोलते हैं चाय वाय। साथियों चाय का तो मानी है, लेकिन वाय का कोई मानी नहीं है। पानी वानी। साथियों पानी का तो एक मतलब होता है, मानी होता है, लेकिन वानी का कोई मतलब नहीं है। साथियों आप याद रखेंगे, मुहम्मल का ताल्लुक उर्दू कवायद से नहीं है। मुहम्मल का ताल्लुक उर्दू कवायद से नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीम आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों आपको मैं बताऊं, लफ्ज को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? लफ्ज को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मौजू और मुहम्मल। लफ्ज को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? लफ्ज को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को मौजू कहते हैं और दूसरे को मुहम्मल कहते हैं। एक को मौजू कहा जाता है तो दूसरे को मुहम्मल कहा जाता है। मौजू कहते हैं मानीदार लफ्ज को। साथियों जिससे कोई बात समझ में आए उसे हम मौजू कहेंगे। मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में मीनिंगफुल कहते हैं और इसे हिंदी में हम सार्थक शब्द कहते हैं। इसी तरीके से मुहम्मल बेमानी लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है। बेमानी लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश के अंदर में मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। साथियों मुहम्मल को इंग्लिश के अंदर मीनिंगलेस वर्ड कहा जाता है और इसे हम हिंदी में निरर्थक शब्द कहते हैं। आप याद रखेंगे साथियों, कलमा किसे कहेंगे? अब साथियों आप इस इबारत पर गौर कीजिए। उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू पर बहस की जाती है, इसलिए इसे कलमा कहते हैं। उर्दू कवायद के अंदर में सिर्फ मौजू पर बहस की जाती है, मानीदार लफ्ज पर बहस की जाती है। साथियों उर्दू के अंदर में कलमा उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू पर बहस की जाती है। साथियों मौजू किसे कहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया, मौजू मानीदार लफ्ज को मौजू कहा जाता है, जिसके मानी होते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स को मौजू कहा जाता है। उर्दू कवायद के अंदर में मौजू पर बहस की जाती है, मौजू से बहस की जाती है, जबकि मुहम्मल का ताल्लुक उर्दू कवायद से जर्रा बराबर भी नहीं है। साथियों आप याद रखेंगे, इसे हम कलमा कहते हैं। लफ्ज मुहम्मल का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं आपको कलमा के बारे में बता रहा हूँ। कलमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। साथियों आप याद रखेंगे, कलमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कलमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। याद रखेंगे आप, कलिमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। याद रखेंगे आप, कलमा को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 5 हिस्सों में। कौन कौन? इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। साथियों आप याद रखेंगे, कलमा को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 5 हिस्सों में। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। साथियों अब मैं आपको इस्म के बारे में बता रहा हूँ। इस्म किसे कहेंगे? कलिमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। साथियों अब मैं आपको इस्म से रूबरू कराता हूँ। अब मैं आपको इस्म की तारीफ सुनाता हूँ। इस्म किसे कहेंगे? जिसको अंग्रेजी के अंदर नाउन कहा जाता है। साथियों इस्म को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वह कलिमा जिससे कोई शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो। इस्म जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। साथियों वह कलिमा जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो, उसे हम इस्म कहेंगे। साथियों आप याद रखेंगे, जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो, चीज का नाम जाहिर हो, उसे हम इस्म कहेंगे। दूसरे लफ्जों में इस तरह भी कहा जा सकता है, जिससे किसी के नाम का पता चले, उसे हम इस्म कहते हैं। साथियों इस्म को अंग्रेजी के अंदर नाउन कहा जाता है। इसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे आप, इस्म वह कलिमा, साथियों वह कलिमा जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो, उसे हम क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। दूसरे लफ्जों में साथियों इस तरह भी तारीफ की जा सकती है, जिससे किसी के नाम का पता चले, उसे हम इस्म कहते हैं। जैसे सबीला, सरफराज, शान, अमन, जैनब, पटना, दिल्ली, हिमालय,
गंगा वगैरह। साथियों इसमें किसे कहेंगे? वह कलिमा जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो उसे हम इसमें कहेंगे। दूसरे लफ्जों में इस तरह भी तारीफ की जा सकती है जिससे किसी के नाम का पता चले, जिस लफ्ज से साथियों दूसरे लफ्जों में इस तरीके से भी तारीफ की जा सकती है जिससे किसी के नाम का पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इस्म कहते हैं। साथियों उसे हम क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। इस्म को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे सबीला, सबीला, सरफराज, शान, अमन, जैनब, पटना, दिल्ली, हिमालय, गंगा, गंगा वगैरह। साथियों ये इस्म की मिसाल है। आप याद रखेंगे इस्म के अक़साम के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में इख्तिलाफ़ात पाया जाता है। इसम के अक़साम के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। साथियों आप इस इबारत को गौर से सुनिए। इसम के अक़साम के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के पास इसम की 2 किस्में हैं और बाज़ के नज़दीक इसम की 5 किस्में हैं। साथियों आप गौर से सुनिए। इसम के अक़साम के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। साथियों आप याद रखेंगे इसम के अक़साम के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज़ के नज़दीक इसम की 2 किस्में हैं और बाज़ के नज़दीक इसम की 5 किस्में हैं। आप याद रखेंगे साथियों आपसी इख्तिलाफ़ात है इसके अंदर। इसम के मुतालिक माहिरीन ज़ुबान साथियों इसमें के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में आपसी इख्तिलाफ है। इसमें के मुतालिक ज़ुबान व क़वाइद के माहिरीन में आपसी इख्तिलाफ़ात हैं। साथियों किसी के नज़दीक 5 है तो किसी के नज़दीक इसमें की 2 किस्में हैं। साथियों किसी के नज़दीक इसमें की 5 किस्में होती हैं और तो बाज़ के नज़दीक इसमें की 2 किस्में हैं। 5 में इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत है। साथियों जिन बाज़ के नज़दीक इसमें की 5 किस्में हैं। साथियों उन 5 में इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत है। और साथियों बाज़ के नज़दीक इसमें की 2 किस्में हैं। बाज़ के नज़दीक इसमें की 5 किस्में हैं। इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा, इसमें कैफियत। याद रखेंगे आप बाज़ के नज़दीक इसमें की 5 किस्में हैं। इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत। साथियों बाज़ के नज़दीक इसमें की 2 किस्में हैं। इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा को इसमें खास कहते हैं, इसमें मारफा को इसमें खास कहते हैं और इसमें नकरा को इसमें आम कहा जाता है। साथियों एनसीईआरटी के अंदर में भी इसमें की 2 किस्में लिखा हुआ है, इसमें मारफा और इसमें नकरा, इसमें मारफा और इसमें नकरा। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप उर्दू क़वाइद को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। साथियों अगर कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीम अगले क्लास में आपके कमेंट पर बात करूंगा। साथियों आपके कमेंट से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। साथियों उम्मीद करता हूँ खुदा की ज़ात से कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे कलम, दवात, किताब, टोपी, कुर्ता, बकरी। आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, जैसे कलम, दवात, किताब, टोपी, कुर्ता, बकरी, कुर्सी, मेज वगैरह। साथियों ये लफ्ज हैं। साथियों आप याद रखेंगे आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज। उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान, इल्म उरूज। साथियों आदमी के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज 2 तरीके के होते हैं। साथियों लफ्ज 2 तरीके के होते हैं, एक मौजू दूसरा मुअम्मल। मौजू को अंग्रेजी में मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं, मौजू को अंग्रेजी में मीनिंगफुल वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में साथियों सार्थक शब्द कहते हैं। इसी तरीके से मुअम्मल को इंग्लिश के अंदर मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। साथियों बेमानीदार को मीनिंगलेस कहा जाता है। मौजू साथियों मौजू वो लफ्ज होता है जिसके मानी होते हैं, जिसके खास मानी होते हैं उसे मौजू कहते हैं। जिसके कोई मानी ना हो उसे मुअम्मल कहते हैं। मौजू की तारीफ है वह अल्फाज जो मानीदार हो, साथियों उसे मौजू कहेंगे, जैसे चाय, पानी, रिकाब, सेब वगैरह इनके मानी हैं। साथियों इसे हम मौजू कहेंगे।
इसको अंग्रेजी के अंदर मीनिंगफुल वर्ड कहा जाता है, मीनिंगफुल कहा जाता है साथियों। इसी तरीके से हिंदी में सार्थक शब्द कहते हैं मुहम्मल, जिसको हिंदी में निरर्थक शब्द कहा जाता है साथियों। इसको इंग्लिश में मीनिंगलेस वर्ड कहते हैं। वह अल्फाज जो बेमानी हो, बेमानीदार लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है, जिसके कोई मानी ना हो। बेमानीदार लफ्ज को मुहम्मल का बेमानीदार लफ्ज को मुहम्मल कहा जाता है। बेमानीदार लफ्ज को जिसके कोई मानी ना हो उसे मुहम्मल कहते हैं। हिंदी में निरर्थक शब्द कहते हैं, हिंदी में निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे साथियों यहाँ मैंने कहा चाय, इसके एक मानी है, लेकिन इस चाय के साथ हम बोलते हैं वाय, वाय का कोई मानी नहीं है। उर्दू कवायद से वाय का कोई ताल्लुक नहीं है। पानी, पानी का साथियों एक मानी है, लेकिन वानी का कोई मानी नहीं है। रेकाब, रेकाब के साथ हम बोलते हैं वेकाब, वेकाब का कोई मानी नहीं है साथियों। सेब के साथ बोलते हैं वेब, वेब का कोई मानी नहीं है। वेब का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है साथियों। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहूँ कि मुहम्मल का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है तो कोई बेजा नहीं होगा साथियों। मैं आपको वाज़ेह तौर पर कहूँ कि मुहम्मल का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है साथियों। आप याद रखेंगे मुहम्मल का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है। कलिमा उर्दू कवायद में सिर्फ मौजू पर बहस की जाती है, इसलिए इसे कलमा कहते हैं साथियों। मौजू को ही कलमा कहा जाता है, मौजू को ही कलमा कहा जाता है। मानीदार लफ्ज को कलमा कहते हैं, जिसके मानी हो साथियों। लफ्ज मुहम्मल का उर्दू कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है साथियों। याद रखेंगे आप कलिमा, कलिमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कलमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। कलिमा को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़िल, हर्फ। साथियों आज के क्लास के अंदर मैंने आपको इसम के बारे में बताया है, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। वह कलिमा जिससे किसी शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो, या उसे दूसरे लफ्जों में इस तरह भी कहा जा सकता है जिससे किसी के नाम का पता चले, उसे हम इसम कहते हैं साथियों। इसम को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, इसम को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी के अंदर इसे नाउन कहते हैं। इसी तरीके से आप याद रखेंगे इसम के अक़साम के मुतालिक ज़ुबान और क़वाइद के माहिरीन में इख्तिलाफात पाया जाता है। याद रखेंगे बाज़ के पास इसम की 2 किस्में हैं और बाज़ के नज़दीक इसम की 5 किस्में हैं। जो 5 किस्में कहते हैं साथियों, उसमें इसम मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत को गिना जाता है। आप याद रखेंगे जो 5 किस्म बताते हैं उसमें इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत को बताते हैं। इसी तरीके से 2 इसमें जो बताते हैं, इसी तरीके से जो 2 किस्म बताते हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा को गिनते हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा को गिनते हैं साथियों। आप याद रखेंगे उर्दू कवायद के मुतालिक आप याद रखेंगे उर्दू कवायद के मुतालिक इसम की 2 किस्में हैं जो एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है। इसम की 2 किस्में हैं, मारफा और नकरा। इसमें मारफा को इसमें खास कहा जाता है, इसमें मारफा को इसमें खास कहा जाता है और इसमें नकरा को इसमें आम कहा जाता है। इसमें नकरा को इसमें आम कहा जाता है, जैसा कि मैंने लिख दिया साथियों। इसी तरीके से इसमें मारफा को इसमें खास कहा जाता है। इस मारफा को अंग्रेजी के अंदर प्रॉपर नाउन कहते हैं, इस मारफा को अंग्रेजी के अंदर प्रॉपर नाउन कहते हैं और इसमें नकरा को साथियों कॉमन नाउन कहते हैं, इसमें नकरा को कॉमन नाउन कहते हैं। साथियों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथियों आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट में जरूर अपनी अपनी राय लिखिएगा। आज के क्लास के अंदर मैंने आपको उर्दू कवायद से मुतालिक मजीद मालूमात फराहम कराया है। साथियों अगर आप एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्लास साथियों अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीटेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, बिलखुसूस बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही खास है। क्योंकि इस क्लास के अंदर जितने भी मवाद आपको बताए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, सारे मवाद एनसीईआरटी पर मुश्तमिल होता है, जो इम्तहानात के नजरिया से काफी अहम और खास होता है। साथियों अगर आप उर्दू अदब की तैयारी कर रहे हैं एसटीईटी के लिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, तो शाम के 6 बजे से 7 बजे तक, शाम के 6 बजे से 7 बजे तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ के मजीद फवायद हासिल कर सकते हैं। साथियों शाम के 6 बजे से 7 बजे तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 से जुड़ के मजीद मालूमात को उर्दू अदब के अंदर हासिल कर सकते हैं। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर शाम के 6 बजे से 7 बजे तक उर्दू अदब की क्लास चल रही है, उर्दू अदब की क्लास चल रही है जो आपके इम्तहानात के नजरिया से काफी अहम और खास होता है, क्योंकि ये सारे क्लास एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर मुश्तमिल होता है। आप याद रखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन उर्दू 99 पर जितने भी क्लास हो रहे हैं साथियों, स्टेट के लिए, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए, सीटेट के लिए, सारे क्लास साथियों एनसीईआरटी पर मुश्तमिल है।
یہ سارے کلاس NCERT پر مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ ساتھیوں اردو قواعد کی کلاس کرنا چاہتے ہیں تو صبح کے 6 بجے سے 7 بجے تک جڑ سکتے ہیں۔ صبح کے 6 بجے سے 7 بجے تک آپ ہمارے YouTube چینل، اگر آپ اردو قواعد کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ساتھیوں اردو قواعد میں خود کو کمزور سمجھتے ہیں اور اردو قواعد سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ساتھیوں آپ یاد رکھیں گے صبح 6 بجے سے 7 بجے تک، صبح 6 بجے سے 7 بجے تک آپ ہمارے YouTube چینل آن لائن اردو 99 سے جڑ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اردو قواعد کو مضبوط بنا سکتے ہیں، اردو قواعد کی سمجھ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ساتھیوں امید کرتا ہوں اب کہ آپ کو میں نے جتنا سمجھایا بتایا آپ بہتر طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ساتھیوں اب دیجیے اجازت، شام کو پھر ملتا ہوں اردو ادب کے کلاس میں نئے کلاس کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔